Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Shrutika Sanjay Davne. Today I'm coming up with a new video on repertory series continued. The next topic that I am covering is cross reference. I hope that you guys are watching my previous videos. If not, please do watch it and then come back to this video. So let's get started with today's video, that is cross reference. So, what is cross reference? It is a reference made from one part of a book or register to another part where same word or subject is mentioned. होम्योपैथिक में क्रॉस रेफरेंसेस किस रेपर्टरी में दिया है? Cross references have been mentioned in two repertories, that is Kent and Boger. Kent and Boger have mentioned cross references in their respective repertories. But क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या है कि कोई भी रूब्रिक हो, उसका सिमिलर मीनिंग वाला दूसरा रूब्रिक है, उसको हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसमें इन दोनों का मीनिंग सेम रहता है, पर उसमें से कौन सा रूब्रिक हमें उस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल है, ये हमें देखना है. सो व्हाट इज क्रॉस रेफरेंस मीन्स? व्हाट क्रॉस रेफरेंस मीन्स referring of similar rubrics either to compare or to enhance the knowledge of a group of medicines. मतलब क्या कि what is the use of cross reference? It will help us to clear out the confusion of apparently similar rubrics. इसका use क्या होगा फिर कि clear out confusion जो भी सिमिलर रूब्रिक्स है उसका मीनिंग सिमिलर आ रहा है, उसमें से हमको कौन सा रूब्रिक वो केस में पकड़ना है, दैट विल हेल्प अस. तो उसको क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं. तो क्रॉस रेफरेंस हैव बीन mentioned by Kent and Boger. Where has Kent mentioned cross references? Mainly in mind section. So cross references mentioned by Kent are given in the bracket against the rubrics. Cross reference mention against rubric in bracket. फिर बोगर has mentioned the cross references at the end of chapters all in one place. So mostly cross references mind section के लिए होते हैं. So moving ahead, there are two types of cross references. Types of cross references. The first type is कि main rubric contains a synonym in the bracket without giving any medicines against it. मतलब क्या? main rubric with a synonym in the bracket, no medicine given. So mostly this kind of cross reference has been mentioned in Kent. If you open Kent on the very first page, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि abandoned और ब्रैकेट में दिया है forsaken. ये ऐसा रूब्रिक दिया है, मतलब यहाँ पे क्या, एंड द पेज नंबर इज मेंशन कि लुक फॉर forsaken, कि अबेंडन मतलब अकेलापन, forsaken मतलब आइसोलेट कर देना, अकेला कर देना, किसी को ग्रुप में अकेली फीलिंग कर देना. सो दिस इज द फीलिंग और द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. तो ये अपेरेंटली इसका मतलब है ना सेम ही है, पर हमें पेशेंट में कैसे देखना है. तो
for the more appropriateness, for the more exactness of the रूब्रिक कि एग्जैक्टली हमको कौन सा रूब्रिक लेना है, तो इसलिए खाली ये दिया है, इसके सामने कोई मेडिसिन नहीं दिया है. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. बोल्डनेस के सामने क्या दिया है? करेजियस. इफ द पेशेंट इज टॉकिंग whether it is boldness or courageousness. One more example, crazy, insanity. तो इसमें क्या होता है कि मेन रूब्रिक अबेंडेंट है, उसके ब्रैकेट में 4 सेकेंड है. यहाँ पे मेन रूब्रिक क्या दिया? बोल्डनेस दिया और फिर लिखा है कि सी फॉर करेजियस. यहाँ पे मेन रूब्रिक क्या है? क्रेजी, और फिर लिखा है कि सी फॉर इंसैनिटी. सो योर व्हाट इज देयर कि मेन रूब्रिक दिया है, उसके सामने ये सिनोनिम है एंड नो मेडिसिन इज गिवन. वी हैव टू गो एंड लुक फॉर 4 सेकेंड. मतलब यहाँ पे जाके 4 सेकेंड में देखना है कि कौन सी मेडिसिन है. This will help you to find the proper medicine, exact rubric. Second type of cross reference कैसे दिया है कि main rubric contains some terms which are similar in meaning, और उसके सामने medicines भी दिए हुए हैं. मतलब main rubric is given with similar terms given in front of it. मतलब मेन रूब्रिक के सामने कुछ सिमिलर टर्म्स दिए है जिसका मीनिंग यही होता है विथ मेडिसिन्स मेंशन. यहाँ पे मेडिसिन्स मेंशन है, मतलब जो मेन रूब्रिक है उसमें भी मेडिसिन्स दिए और जो सिमिलर टर्म्स है उसमें भी मेडिसिन्स दिए हुए हैं. They draw our attention towards similar rubrics so that one can always check the exactness of the rubric. मतलब कि इस मेन रूब्रिक में कौन से मेडिसिन दिए हैं और ये सिमिलर टर्म्स जो उसके सामने दिए उसमें कौन से मेडिसिन दिए, तो पेशेंट का केस के हिसाब से एग्जैक्टली कौन सा रूब्रिक लेना है और कौन सी रेमेडी देनी है हमको ये डिसाइड करना है. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस सेकेंड थिंग. ब्रूडिंग के सामने दिया है सी एंजाइटी, सैडनेस. ब्रूडिंग मतलब क्या कि किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रीफ जताना. सैडनेस विथ एंजाइटी. तो ब्रूडिंग के सामने भी मेडिसिन दिए हुए हैं और एंजाइटी सैडनेस के सामने भी मेडिसिन दिए हुए हैं. तो वी हैव टू लुक फॉर एग्जैक्टली हाउ द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग, उसमें से कि ये रूब्रिक लेना है या ये रूब्रिक लेना है और कौन सा मेडिसिन है. वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. बिजी और उसके सामने दिया है सी ऑक्यूपाइड. सो वेदर वी हैव टू टेक द रूब्रिक एज बिजी और ऑक्यूपाइड. वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव. कंप्लेनिंग and in bracket it is given C lamenting. तो whether the patient is complaining और exact word हमें lamenting लेना है, which medicine is to be given or which rubric has to be considered, इसके लिए cross references दिए हैं. So the whole motive of introducing cross references in repertory is just to give the correct remedy to the patient. patient का say क्या है, उसमें से correct rubric हमें कौन सा पकड़ना है. वेदर मतलब दो डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं पर उसका मीनिंग सेम होता है, बट एग्जैक्टली डिपेंडिंग अपॉन हाउ द पेशेंट इज सेइंग व्हाट इज द केस. तो उसमें से हमें एग्जैक्टली उन दोनों सिमिलर रूब्रिक्स में से कौन सा रूब्रिक एग्जैक्टली वो केस में फिट होता है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू look and go for the remedy. So this is about cross reference in repertory. If you find this video useful, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you.